पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। Cristuleto snehunamelei, Francis Papa, Myanmar Kusukaramainu, the supposed fabulous melody, Arilunde,
സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഈശോ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം നല്ലിടയനെ കുറിച്ചാണ്. ഒത്തിരിയേറെ കരുതലുള്ള ഒരിടയൻ, ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളെ കുറിച്ച് ജാഗ്രതയുള്ള ഒരിടയൻ, ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹമുള്ളൊരിടയൻ. അപ്രകാരം ഒരു ഇടയനാണ് താനെന്ന് ഈശോ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഈശോ പറയുന്നു, തന്റെ ആളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ നടക്കാം, ആളുകൾ എന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവർ എന്നെ പിന്തുടരുമെന്ന്. തന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നു പോകുന്ന ഇടയനെ നോക്കി വേണം ഓരോ കുഞ്ഞാടും ഓരോ ആളുകളും അവനെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട്. വഴിയിൽ എന്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, എന്ത് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, എന്ത് വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാലും അത് ആദ്യം ഇടയന് നേരെയായിരിക്കണം. ആ ഇടയൻ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയനെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തന്റെ ആളുകളെ സമീപിക്കുവാൻ ആ ശത്രുവിന് കഴിയൂ എന്ന് ഈശോ എന്നെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഈശോ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു, ഞാൻ ഗോശാലയുടെ വാതിലാണ്. പഴയ നിയമചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇടയൻ കിടക്കുന്നത് വാതിൽ പടിയിലാണ്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ അകത്തോട്ട് കയറണമെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഒരാൾ പോകണമെങ്കിലും ആ ഇടയനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് വേണം. അത്രയേറെ കരുതലോടുകൂടി ഇടയൻ കിടക്കുമ്പോൾ, ആ വാതിൽ പടിയാകുമ്പോൾ ഓരോ കുഞ്ഞാടിനും ഒരാടിനും ആ പറ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശത്രുവിന് ആ ആട്ടിൻകൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനോ സാധിക്കുമെന്ന് ഇടയൻ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട 2 ജോലികളും ആയിരുന്നു. ഒന്ന് ബുക്കുവ ജോലിയും മറ്റൊന്ന് ആട്ടിടയുന്ന ജോലിയും. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒത്തിരിയേറെ സഹനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മണം മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവർ വരുമ്പോഴേ മുക്കുകുത്തി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു. അപ്രകാരം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈശോ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ ശരിക്കും നല്ല ഇടയനാണ്, ഇടയന് വേണ്ടി ജീവൻ പരിഹരിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഈസ്റ്ററിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശോ കുരിശിന്റെ ആ നെറുകയിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതും ജീവൻ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയനെ കുറിച്ചാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ തന്നെ നമുക്കായി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ മഹിമയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവിടെ നമുക്ക് അവസരം നൽകി. ഈ ദിവ്യബലിക്കായാണ് നമുക്ക് ആ ഇടയനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും ആ ഇടയന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ബലി ഏറ്റവും ദുഃഖത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബലി ആരംഭിക്കാം. हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग सबदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर हमारे पक्ष माकर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे जीवन स्रोत पिता
सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सबों को स्वर्ग के पथ पर आगे बढ़ा, जहाँ संतों के मंजिल अनंत सुख में है। ऐसे कृपा दे कि जहाँ गड़े ख्रिस्त विराजमान है, वही उनकी विनम्र भेड़े पहुंचे। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का चौथा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 2 पद संख्या 14 और 36 से 41 तक। ईश्वर ने यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है
और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सारी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 20 से 25 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है
और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत की ओर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद 1 से 10 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरबार फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, अब क्योंकि वह उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, वे तो उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी आवाज नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरगाह मिलेगी। चोर निकल केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में भाई और बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त एक दृष्टांत सुनाते हैं। यह दृष्टांत इस प्रकार है।
परिचित और अपरिचित। परिचित व्यक्ति प्रभु को जानते हैं क्योंकि उनका प्रभु के साथ संबंध है, उसे कहते हैं परिचित। और अपरिचित व्यक्ति प्रभु को नहीं जानते हैं, वे नहीं समझते हैं और प्रभु को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए वे प्रभु को अनुसरण नहीं करते हैं। जो परिचित व्यक्ति है वो समझते हैं, जानते हैं कि प्रभु में ही अनंत जीवन है, प्रभु में ही परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सुसमाचार में इस प्रकार प्रभु कहता है, मैं इस संसार में इसीलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन प्राप्त हो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। और परिपूर्ण जीवन तभी प्राप्त हो सकता है जब हम लोग ईश्वर के साथ में एक हो जाएंगे। इस संसार में हमारे लिए परिपूर्ण जीवन प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि परिपूर्ण जीवन केवल स्वर्ग राज में ही प्राप्त हो सकती है जब हम लोग ईश्वर के साथ में एक हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर आत्मा है और जब तक हम लोग प्रभु के जैसे, ईश्वर के जैसे नहीं बन जाएंगे तब तक हम इस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परिपूर्ण जीवन को प्राप्त नहीं पा सकेंगे। क्योंकि यीशु ख्रिस्त कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 48 में, पूर्ण बनो जिस प्रकार तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तो पूर्ण बनना या तो परिपूर्ण जीवन प्राप्त करना केवल ईश्वर में है। जब तक हम लोग ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे तभी हमें वो जीवन प्राप्त हो सकता है। और यदि हम लोग ईश्वर के साथ में एक नहीं होते हैं तो हमें वो जीवन प्राप्त कभी नहीं होगी। और ये परिपूर्ण जीवन क्या है? परिपूर्ण जीवन अनंत जीवन है। परिपूर्ण जीवन में हम लोग अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं और वो जीवन हमें इस संसार में नहीं बल्कि दूसरे संसार में ही प्राप्त हो जाएगा। वो है ईश्वर के राज्य में वो परिपूर्ण जीवन या तो अनंत जीवन को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और जैसा कि आज के सुसमाचार में कहता है, परिचित व्यक्ति या तो परिचित भेड़े या तो अपरिचित भेड़। परिचित वही है जो प्रभु को जानता है कि प्रभु मसीह है, प्रभु मसीह है जिनको ईश्वर ने भेजा है और उसमें विश्वास करता है, वही है अनंत जीवन। संत यूहन्ना के सुसमाचार में बताया गया है अध्याय 17 पद संख्या 3 में कि अनंत जीवन यही है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं मसीह हूं और मुझे पिता ईश्वर ने भेजा है। तो प्रभु को जानना कि प्रभु मसीह है और वो मसीह ईश्वर की ओर से आया है, वही हमारे लिए अनंत जीवन है। और संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त बहुत बार इस प्रकार कहते हैं, मैं सच्ची दिखलाता हूं, मैं भला गडेरिया हूं, मैं ही अनंत जीवन के तो पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। ये शब्द ईश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है। मैं हूं, अयम हूं, अयम, जिसको हमने पुराना विधान में सुना है। जब ईश्वर ने मूसा नबी से बातचीत करते हैं तो वो अपने आप को प्रकट करते हैं, अयम हूं, अयम, मैं सत्य हूं। वही शब्द यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में भी प्रयोग करते हैं और ये इसी को दर्शाता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर है। जो पुराना विधान में ईश्वर मूसा नबी को दर्शन दिए थे वही प्रभु यीशु ईश्वर है। इसीलिए यीशु ख्रिस्त इस प्रकार का शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कि हम लोग वही पुराना विधान का ईश्वर को जान जाएंगे या तो प्रभु यीशु ख्रिस्त में पहचान सकेंगे। और आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं यीशु ख्रिस्त बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि कहा है चोर, डाकू, और चोर केवल चुराने या मारने या तो नष्ट करने के लिए आता है। इस प्रकार का प्रयोग यीशु ख्रिस्त ने इसीलिए कहा है कि पुराना विधान में बहुत सारे नबी लोग आए थे जिनको हम लोग कहते हैं फॉल्स नबी। जो नबी लोग ईश्वर की ओर से नहीं आए थे, वे शैतान की ओर से आए थे, लोगों को भटकाने के लिए आए थे। उन्हीं के लिए इस शब्द को
प्रयोग किया गया है, तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया है कि चोर चुराने या तो मारने के लिए केवल आता है। जो पुराना विधान में बहुत सारे नबी आए थे, वे लोगों को भटकाने के लिए आए थे, लोगों को गलत रास्ता में ले जाने के लिए आए थे, और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि चोर केवल चुराने या तो मारने के लिए केवल आता है। और आज के समाचार प्रभु यीशु क्रिस्त कहता है कि मैं भला गड़ेरिया हूं। और ये भला गड़ेरिया हम लोग कहां पर पाते हैं? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में पाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में बताया गया है, ईश्वर के बारे में बताया गया है कि ईश्वर एक भला गड़ेरिया है जो हमें सही मार्ग में ले चलता है, हरी मैदानों में ले जाता है, या तो हमें जीवन जल प्राप्त करता है, प्रदान करता है। और वही ईश्वर जो पुराना विधान स्तोत्र ग्रंथ में अपने आप को प्रकट किया था एक भला गड़ेरिया के रूप में, जो हमें सही मार्ग में ले जाता है, हरी मैदानों में चराता है और अनंत जीवन अनंत जल प्रदान करता है। वही शब्द यीशु क्रिस्त भी आज हमारे लिए प्रयोग करते हैं और कहते हैं भला गड़ेरिया मैं हूं। और ये भी कहते हैं कि भेड़शाला का द्वार मैं हूं। भेड़ कौन है? भेड़ हम मानव जाति है, और हमारा घर क्या है? वो है स्वर्ग राज्य है। ईश्वर का राज्य हमारे लिए भेड़शाला है। जितना भी मानव जाति है, मरने के बाद में उनको यही जीवन प्राप्त होगा। अगर यदि अच्छा जीवन जिए हैं तो उन्हें वही भेड़शाला मिलेगा जो ईश्वर का राज्य है। तो यही ईश्वर का राज्य यानी कि भेड़शाला का राज्य का द्वार केवल यीशु मसीह है। यीशु क्रिस्त कहते हैं मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। यीशु क्रिस्त सही मार्ग है जो हमें वही भेड़शाला का द्वार दिखाते हैं, और हमें वही जीवन प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु का सहारा लेना है। वो है यीशु मसीह का सहारा लेना है, या तो यीशु मसीह का द्वार होके ही हमें उस राज्य में प्रवेश करना है। तो क्रिस्त में मेरे भाई एवं बहनों, जब हम लोग इस निशा बलिदान में भाग ले रहे हैं तो पिता ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमें आशीष और कृपा प्रदान करें कि हम लोग सच्चे ईश्वर को जाने जो मसीह कहलाते हैं, और ये भी जाने कि वही मसीह के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होगा, स्वर्ग राज्य भी प्राप्त होगा। तो इसी मतलब के लिए हम लोग इस निशा बलिदान में ईश्वर से आशीष और कृपा मांगे। हम सभी में खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करेंगे। हे सर्वशक्ति, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जब पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिबुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कादिश कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापियों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु क्रिस्त मृत में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबों की मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करे, इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रों और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी क्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो क्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता, मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वास से इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो आज के इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको अपनी आशीष और कृपा बरसाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें जो अभी भयभीत है कोरोना वायरस के कारण। प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको अपनी आशीष कृपा बरसाए और उन्हें स्वस्थ रखे। ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी आवश्यकताओं को भी प्रभु के सामने प्रकाश करें। हे प्रभु, हमें पस्का की कृपा दानों से भर दे, या स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि आप पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। वेदी के इन दानों के साथ पावन करो प्रभु, पावन करो। वेदी के इन दानों के साथ पावन करो प्रभु, पावन करो। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ाता है वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बने। या विधि स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पस्का का मेमना बलि चढ़ाए गए, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। यह स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारे मुक्ति के लिए अपने को तुझे अर्पित करते हैं। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमा से खुदा नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त उद्गानों तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सभी पवित्र आत्मा का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपकार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था करो, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। एक साथ क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर आपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि यह तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर लकड़ा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बंधुओं की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शनों का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, सेंट जोसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे सेवक सेवकाएं मर गए, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम लोग एक साथ गाएंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्थ तथा महिमा
जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकाश होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं हूँ तुम्हारे
प्रसाद वचन। ख्रिस्त हमारे भले गडेरे जी उठे, उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही परम भला गडेरिया है, अपनी भेड़ों पर कृपा दृष्टि डाल। तेरे पुत्र ने अपना रक्त बहाकर इनकी मुक्ति की है, इनको आनंद चरगाह में ले जाने की कृपा कर। या प्रार्थना सुन ले अपने पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।
ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ, മാനവർക്കെന്നും ആശ്രയമേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ, മക്കളാം ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ. മാനവവ്യാധികൾ മാറിടുന്നി മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ മാറിടത്തിൽ. മാനവവ്യാധികൾ മാറിടുന്നി മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ മാറിടത്തിൽ. കനിവാൻ സുഖനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. കൈവിടാനെന്നും നീ ചേർത്തിടണേ. കനിവാൻ സുഖനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. കൈവിടാനെന്നും നീ ചേർത്തിടണേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ, മാനവർക്കെന്നും ആശ്രയമേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ, മക്കളാം ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ. കോവിലിൻ കൊടിയ വിപത്തിലല്ലോ മാനവരങ്ങി കൊന്നരഞ്ഞ. കോവിലിൻ കൊടിയ വിപത്തിലല്ലോ മാനവരങ്ങി കൊന്നരഞ്ഞ. മാധ്യസ്ഥമേ മേരിമാനേ, മക്കൾക്കിന്ദാശ്രയം നീ മാത്രമേ. മാധ്യസ്ഥമേ മേരിമാനേ, മക്കൾക്കിന്ദാശ്രയം നീ മാത്രമേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ, മാനവർക്കെന്നെന്നും ആശ്രയമേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ, മക്കളാം ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ, മാനവർക്കെന്നും